ڈیرکی کے قریب ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس ٹکرا گئیں۔ خوفناک حادثے میں 30 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ملت ایکسپریس کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر کر اب ٹریک پر گر گئیں۔ ٹریک سے اترنے والی بوگیوں کے ساتھ سر سید ایکسپریس ٹکرا گئی، جس کے بعد انجن بوگیوں کے اوپر الٹ گیا۔ درجنوں مسافر تاحال بوگیوں میں پھنسے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ یہ واقعہ صبح سویرے تقریباً 4 بجے پیش آیا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہو سکا ہے اور ایمرجنسی کی اس صورتحال میں جائے وقوع پر ایک کٹر فوری ضروری ہے تاکہ ان بوگیوں کو کاٹ کر ان میں موجود زخمی افراد کو نکالا جا سکے، جن کی آوازیں عینی شاہدین کے مطابق اب بھی یہاں سے سنائی دے رہی ہیں، مگر اب تک ایسی کوئی کرین یا کوئی بڑا کٹر یہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ بیورو چیف سکر رشید رضا نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ رشید، یہاں پر امدادی کارروائیوں کے لیے کوئی کٹر وغیرہ پہنچ سکا ہے؟ ہماری جو ریلوے ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ریلیف ٹرین جو ہے وہ میر کو ماتھیلو پہنچ گئی ہے اور جلدی جو ہے اپنا ریلیف کا کام شروع کر دے گی، مگر ابھی تک جو جائے حادثہ پر کوئی ایسی مشینری یا کوئی جدید ڈاکومنٹ نہیں پہنچ سکا جس کی وجہ سے ریسکیو کام مکمل کیا جا سکے یا آگے بڑھایا جا سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تو انجن ہے اس کو ہٹانے کے لیے کوئی ایسی مشینری کرن نہیں پڑ سکی جس کی وجہ سے جو وہاں پر لوگ زخمی ہیں یا جن کے رشتے دار وہاں پر انتقال کر گئے ہیں حادثے میں، ان کے کوئی جان بوجھنے والے جو وہاں موجود ہیں ان کی تعداد کے لیے بھی وہاں پر جو ہے حادثہ پر کوئی ایک بندہ نہیں موجود۔ چلے اسپانیہ کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم نے جتنے انتظامات کر لیے ہیں وہاں پر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ وہاں پر کوئی عملی طور پر کام کیا گیا ہو۔ رشید، کوئی اندازہ ہے کہ اس وقت جائے وقوع پر کتنے زخمی ہیں جنہیں ریسکیو کرنا ضروری ہے اور انہیں نہیں ریسکیو کیا جا رہا؟ دیکھیں، انجن جو ہے بوگی کے اوپر الٹا ہوا ہے، بوگی کے اندر بہت سارے مسافر ہیں اور جہاں باغ ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ 30 کے قریب جو ہے وہ مسافر جہاں باغ ہو چکے ہیں، 50 سے زائد زخمی ہیں۔ پاک فوج کے جو دستہ ہے وہ وہاں پہنچا ہے، وہ اپنی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ وہ اس وقت اگر فعال دیکھا جائے حادثہ پر تو پاک فوج کے جوان اور ایڈی کے رضاکار یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے کارکنان کو جو مقامی عہدیداران ہیں ان کو وہاں بھیجا ہے، مگر رشید رضا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت نمائندہ GNN قاضی اگنشر سے بھی بات کریں گے جو الصبح سے ہی جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ قاضی اگنشر، بتائیے گا کہ کیا امدادی کارروائیوں میں کوئی تیزی آ سکی ہے؟ اس وقت کے کیا مناظر ہیں؟ جی بالکل، اگر امدادی کارروائیوں کی بات کی جائے تو اس وقت بالکل امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ 1122 ریسکیو جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں، اس کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں اور جو مقامی افراد ہیں وہ بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ رینجر کے اہلکار ہیں، پاک فوج کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت کچھ دیر پہلے یہاں سے جو ایک ڈبہ جو انجن کے نیچے تھا وہاں سے 4 سے 5 مسافروں کی لاشیں ریسکیو 112 اور پاک رینجر کے جو جوان ہیں، جو پاک آرمی کے جوان ہیں اور جو مقامی افراد ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نکالی ہیں اور جو مقامی افراد ہیں انہوں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹر لائے ہیں جس کے ذریعے جہاں پر جو بوگیاں ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے اور جو اس میں پھنسی ہوئی لاشیں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت بالکل جو ریسکیو کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کے جو جوان ہیں وہ یہاں پر جو ہے ریسکیو کر رہے ہیں۔ مسافر جو زخمی مسافر ہیں، جو جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں ہیں وہ بھی نکالی جا رہی ہیں، جس کے ساتھ پاک رینجر اور پاک آرمی کے افراد بھی جو جوان ہیں وہ بھی۔ قاضی یہ بتائیے گا کہ یہاں سے قریبی اسپتال کون سا ہے جہاں پر فوری طور پر زخمیوں کو منتقل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے؟ وہاں پر سہولیات کیسی ہیں؟ کی جائے تو وہ ریتی ہے، مگر وہ دیہی علاقہ ہونے کے باعث وہاں پر سہولیات نہ ہونے کے باعث جو زخمی ہیں ان کو ڈہرکی ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈہرکی یہاں سے 22 سے 20 کلومیٹر ہوگا جہاں پر ان زخمی مسافروں اور ان کی لاشوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ جو زیادہ زخمی ہیں ان کو رحیم یار خان اور سکھر کی ہسپتالوں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، مگر اس وقت جو ہے کافی تعداد میں ایمبولینسیں بھی موجود ہیں جو لاشوں کو اور زخمیوں کو منتقل کر رہی ہیں، مگر یہاں پر ابھی تک ایسی کوئی امدادی کیمپ قائم نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے قاضی، ساتھ ہی رہیے گا۔ ریلوے حکام کا موقف کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے جو کہ اب تک آفیشیلی سامنے نہیں آیا۔ ہمارے نمائندے شوکت علی نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ شوکت، ریلوے حکام نے بتایا کہ باقاعدہ طور پر کتنی ہلاکتیں ہوئیں، امدادی کارروائیوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ریلوے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ریلیف ٹرین ہے وہ کوٹری سے روانہ کر دی گئی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 30 افراد کے جاں بحق ہونے کے اطلاعات وصول ہو رہی ہیں، لیکن جو ریلوے ترجمان ابھی اس کو
تصدیق نہیں کر رہے, لیکن جو ہمارے ذرائع تصدیق کریں کہ 30 افراد اس میں جاں بحق ہو سکتے ہیں اور درجنوں افراد جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ حادثات ریلوے کے معمول بن گئے ہیں. آج بھی یہ جو ملت ایکسپریس ہے کراچی سے جب روانہ ہوئی سرگودا, تو اس کا جو انجن بھی ٹھیک نہیں تھا اور اس کی کئی جو بوگیاں تھیں وہ بھی اس قابل نہیں تھیں کہ اس کو روانہ کیا جا سکے. لیکن ریلوے انتظامیہ کے پاس نہ تو بوگی ہے نہ انجن ہے, 150 سال پرانا ٹریک ہے, وہ اسی ٹریک کو چلا رہے ہیں. ابھی ان کا سکٹ کی جو ڈویژن ہے وہ بھی سندھ میں اتنا ایک مراسلہ لکھا تھا ڈی ایس ریلوے کو, ان کو سی او کو اس کو بتایا تھا کہ 546 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ چل سکے. اور اس کے علاوہ جو مین لائن ہے اس کا بھی انہوں نے لکھا کہ 576 کلومیٹر کی وہ مین لائن ہے, وہ بھی کسی وقت سے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے. اب اس پہ یہ میٹنگ کر رہے تھے, 2 روز پہلے یہ جی این اے نے خبر دی تھی, تو یہ حادثہ پیش آ گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ریلوے کی کیا حالت ہے. نہ ان کے پاس ٹریک ہے, نہ ان کے پاس بوگی ہیں. سگنل سسٹم جو ہے وہ تقریباً 3 سال سے خراب پڑا ہے. اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک بیرون ملک سے ایک سسٹم لے کر آئیں, لیکن جو ریلوے کے کرپٹ افسران ہیں انہوں نے اس کو بھی کرپشن کی نظر کرتے ہوئے آلات تو منگوا لیے, لیکن اس کو نصب نہیں کیا. جب اس پہ نیب میں, کیونکہ یہ 5 ارب کا معاملہ تھا, جب ان نیب میں کیس بھجوایا تو جو وزیر ریلوے جو نئے ہیں شوکت, یہ بتا سکتے ہیں آپ کے ریلوے حکام کے علم میں کتنے عرصے سے ہے کہ یہ ٹریک خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور آج تک نہیں ہوا اور اب یہ حادثہ آیا؟ ٹریک کے ریلوے انتظامیہ کے علم میں یہ بات تقریباً 3-4 سال سے ہے. انہوں نے بس یہ کہہ رکھا ہے ڈرائیور حضرات کو کہ اپنی جو سپیڈ ہے آپ اس کو لمیٹڈ کر دیں, لیکن ڈرائیور اس میں کیا کر سکتا ہے جب وہ ٹریک اتنا گھس گیا ہے. اور جب اس کے جو سابق تھے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب, جو میڈیا نے جب بار بار ان کی توجہ اس طرف دلائی تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو ML1 بنے گا وہ اس کی ملک کی تاریخ بدل دے گا, ریلوے منافع بخش بن جائے گا. لیکن جب یہ پوچھا یہ کب اسٹارٹ ہونا ہے, اس کے ٹینڈر ہو رہے ہیں, ابھی مطلب اس کا اخبار اشتہار ہوگا, غیر ملکی فرموں سے ہم نے بڈ لے لیے, کچھ ایسا نہیں ہوا. اور 8 سالہ یہ منصوبہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور سے جو بندہ جاتا ہے وہ کتنا سفر کرتا ہے, اور ریلوے اتنا خسارے میں جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹرینیں چلائی تھی اس میں بھی لوگوں نے سفر نہیں کیا. یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے شوکت کہ 4 سال سے علم میں ہے مگر اس پر کام نہیں ہوا, 4 وزیر بدل دیے گئے مگر کام نہیں کیا گیا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں سے متعلق معلومات جاننا چاہتے ہیں جو اس ٹرین میں سوار تھے. ریلوے حکام نے زخمی یا پھر جاں بحق ہونے والوں کی کوئی فہرست جاری کی ہے؟ اگر وہ نہیں تو کم سے کم متاثرہ بوگیوں کے نمبر تو بتائے ہوں گے, یہ وہ بھی نہیں بتایا جا رہا. انہوں نے بتایا کہ جو 4 سے 7 جو بوگی ہیں اس میں مسافروں کی تعداد ہے وہ تقریباً 300 سے زیادہ ہے, لیکن ابھی کوئی آن نہیں کر رہا. یہ صبح کا ٹائم ہے اور ریلوے ہیڈ کوارٹر کے جو افسران ہیں وہ بھی آرام کر رہے ہیں, ابھی تک یہاں پر پہنچے نہیں ہیں. اور جو ان کا ایک ترجمان ہے وہ فرضی سی مطلب کارروائی کرنے کے بعد وہ بھی آپ فون ریسیو نہیں کر رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. ایک رائے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوٹکی کے مطلب قریب ہوا ہے, گھوٹکی پہلے بھی یہاں پر بہت زیادہ ٹرین حادثات ہو چکے ہیں. اور ایک ذرائع کہنے کہ جو اس کے درمیان ہوا ٹھرکی کے درمیان ہوگا. ابھی یہ جگہ کا تعین بھی صحیح طرح نہیں بتا رہے. البتہ یہ کہ جو مقامی افراد ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں. ریلوے پولیس کے بھی افراد انتہائی کم ہیں. اور یہ کیمپ ابھی یہ ہیڈ کوارٹر یہاں پر قائم کریں گے. اس کا جو کنٹرول روم ہے یہ ادھر روڈی اسٹیشن پر, تو روڈی اسٹیشن سے ہی لوگوں کو پتہ لگ سکے گا کہ وہ کیا ہے. اب البتہ جو ریلوے ہیڈ کوارٹر کا جو مرکزی آفس ہے وہ ابھی اس طرح خاموش ہے. ٹھیک ہے, تو فی الحال مطلب کہیں سے کوئی معلومات حاصل کرنا مشکل ہے عوام کے لیے. اگر کسی کو رابطہ کرنا ہے اور جاننا ہے کہ کیا صورتحال ہے وہ روڈی اسٹیشن پر ایمرجنسی میں رابطہ کر سکتے ہیں, مگر وہاں سے معلومات ملنے کے امکانات زیادہ نہیں ہیں. شوکت, یہ بتائیے گا کہ اس ٹریک سے متعلق جہاں پر آپ نے بتایا ہے کہ 4 سال سے ریلوے حکام کے علم میں ہے, اس کو سدھارنے کے لیے یہاں پر اس ٹریک کو ریپیئر کرنے یا پھر یہاں پر نیا ٹریک انسٹال کرنے کے لیے اب تک کوئی پریکٹیکل ایفرٹ ہوئی ہے, اور وہ کس وزیر نے کی ہے, کتنا کام ہوا اس پر؟ کچھ نہیں. جب اعظم سواتی آئے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے. ایک دفعہ انہوں نے صرف شیخ صاحب جو وہ روزانہ تقریباً ہفتے میں 1-2 پریس کانفرنس کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے, لیکن اب جو وزیر آئے ہیں وہ بالکل نہیں بتا رہے. بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق جو انتظامیہ تھی انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا اور نہ اس میں ہے. اور ان کا جو زیادہ تر فوکس اب ریلوے انتظامیہ کا لگ رہا ہے وہ فریٹ بزنس کی طرف ہے. وہ اپنا فریٹ جو بزنس ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. سکریپ کا کاروبار انہوں نے تھوڑا سا بڑھایا ہے, اس میں انہوں نے تقریباً 1 ارب روپیہ اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ حاصل کر لیا, تو اس پہ یہ بہت خوش ہیں. لیکن جو مسافر ٹرینوں کی حالت ہے, خاص کر جو کراچی جانے والے افراد ہیں, کیونکہ ریلوے کا جو مین سورس ہے آمدنی کا وہ کراچی ہے, اور اس میں 10 سے 12 ٹرینیں روزانہ جا رہی ہیں لاہور سے کراچی کے درمیان. لیکن یا تو وہ ٹرینوں کو مسافر جو ہے اپنی رقم ریفنڈ کر لیتے ہیں کیونکہ گھنٹوں ٹرینیں آتی نہیں ہیں, تو ریلوے کو تقریباً ایک ماہ میں 86 سے 87 کروڑ روپے کے ٹکٹ جو ہے وہ ریفنڈ کرنا پڑ رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں. اور پھر جب ان کو ریفنڈ کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کسی اور ٹرین میں ایڈجسٹ ہو جائیں. لوگ پھر گھروں کی راہ لیتے ہیں, اور اب ایک اور پالیسی بنا دی ہے کہ اگر جب 6 گھنٹے کے اندر اپنے پیسے ریفنڈ نہیں کریں گے تو وہ پیسے بھی ضبط ہو جائیں گے. تو یہ ریلوے کا تو بالکل اللہ ہی حافظ دکھائی دے رہا ہے. یہ ٹرینیں پتہ نہیں کس طرح چلیں گی, اور 1856 کا یہ ٹریک ہے, اور اس کی جو انجن کی حالت ہے جو لوکوموٹیوز وہ بھی اب جب چلنے کے قابل
पर ड्राइवरों की ट्रेनिंग पे जोर दिया हुआ है कि किसी तरह से ये सिस्टम चलता रहे। लेकिन अगर जो आप प्राइवेट भी करते हैं, अब इन्होंने ट्रेनों को प्राइवेट चलाने के लिए जो 46 जो ट्रेन है उसके लिए इन्होंने अखबार में तैयार दे दिया है, उसके ऑप्शन तलब किए हैं। तो यानी कि मुख्तसरन शौकत ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान रेलवे ने पाकिस्तानी अवाम की जो सिक्योरिटी है, पब्लिक हेल्थ को रिस्क पे डाल रखा है, और जिस तरह से काम हो रहा है उससे देख के लगता है कि ऐसे दुनिया में कहीं पर भी काम नहीं होता। 4 साल से एक खत लिखकर कहा गया है कि ये ट्रैक ख़राब है, इसको रिपेयर किया जाए, मगर उस पर काम नहीं हुआ। उल्टा जो मंसूबा शुरू किया गया वो भी करप्शन की नज़र हुआ और वज़रा के महज दावे सामने आते रहे और आज ये हादसा हुआ। 30 मुसाफिर जान से गए हैं। ये पहला मौका नहीं है कि रेलवे की वजह से, रेलवे हुकाम की मुजरिमाना गफलत की वजह से यूं पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हुई हों। इससे पहले हमने देखा है कि एक छोटा सा हादसा 75 अफराद, एक और हादसा 80 अफराद, ऐसे हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और रेलवे हुकाम ख्वाब गफलत का शिकार नज़र आते हैं। बार बार वज़रा ज़रूर तब्दील किए गए हैं मगर इन ट्रैक्स को बदलने की जानिब किसी ने कुछ नहीं सोचा। जी, आपको बताएं कि डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई और इस खौफनाक हादसे में अब तक 30 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नुमाइंदा GNN काजी अगनशर से भी तफसीलात लेंगे। काजी, ये बताएगा कि कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि लाशें अभी तक ज़मीन पर पड़ी हैं और उनको मुंतकिल नहीं किया जा सका, अब की क्या सूरत हाल है? क्या कोई इंतज़ाम किया गया लाशों को मुंतकिल करने का? जी बिल्कुल, अब जो लाशें हैं, जो जख्मी हैं, उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये घोटकी का दूसरा बड़ा ट्रेन हादसा कह सकते हैं। इससे पहले 10 साल कबल भी घोटकी के इलाके सरहद में एक ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें 70 से ज्यादा अफराद जो है अपनी जान की बाजी हार गए थे और कई उसमें जख्मी हुए थे। और हम कई बार अपने चैनल के जरिए रेलवे हुकाम को आगाह कर चुके हैं कि जो घोटकी की ट्रैक है वो खस्ता हाली का शिकार है और लकड़ियों के सहारे पर इसको छोड़ा गया है। तो ये आज भी जो ऐसे लगता है कि पटरी यहाँ पर सारी टूट फूट का शिकार है, तो जिसकी बायस जो है ये ट्रेन की जो बोगियां डीरेल हुई थी, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। और अभी आपको मैं यहाँ पर रेस्क्यू जो का अमल है वो आपको बता चलूं कि 112 ने अभी मेरे सामने एक लाश निकाली है जिसको भी एम्बुलेंस की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है और उसको उसके बाद उसको डहरकी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी लाशें निकालने का अमल जो है, जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो इन लाशों को निकाल रहे हैं और यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो छोटे छोटे कटरों के साथ आपने कुछ देर पहले बताया कि जो मुकामी लोग हैं वो ट्रैक्टर्स के साथ जो इंजन है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोई कामयाबी हुई बोगियों के ऊपर जो इंजन आया हुआ था उसको हटाने में? कोई 1 घंटे तक ट्रैक्टरों से इंजन को हटाने की कोशिश की मकामी अफराद ने, मगर वो नाकाम रहे। जिसके बाद उन्होंने छोटे छोटे कटर जो है वो लेकर आए हैं जिनके जरिए यहाँ पर बोगियों को काट कर वहाँ से लाशें निकालने का अमल जारी है। और अभी 10-15 मिनट के अंदर कम से कम 5 से 6 लाशें बोगी से निकाली गई हैं और मजीद जो है वो भी कोशिश की जा रही है। और जो रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो पाक रेंजर के एहलकार और पाक आर्मी के जो जवान हैं वो अभी रेस्क्यू के अमल में जो है उन्होंने आगाज किया है। तो उसके बाद रहिएगा, रेस्क्यू के लिए जरूरी है कि यहाँ पर बड़ी क्रेन, मशीन और कटर्स यहाँ पर पहुंचे जो इन बोगियों को काटें, इनमें फंसे जख्मियों को निकालें। इत्तलात है कि जो बोगियां मुतासर हुई हैं मजमूई तौर पर उनमें 300 के करीब मुसाफिर हैं। अब तक तकरीबन कहा जा सकता है कि 30 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, कुछ जख्मी निकाले गए हैं, मगर इत्तलात ये हैं और ये मुसद्दे का इत्तलात है कि इन बोगियों में मजीद अफराद भी फंसे हुए हैं। रशीद रज़ा, ये बताइएगा कि इन यहाँ पर बोगियों को काटने के लिए कटर बहुत ज़रूरी है, वो जिस मकाम से लाया जाना है, इत्तलात क्या है, कहाँ पहुँचा है, कब तक जाए वक़ुआ तक पहुँचा पाएंगे उन मशीनरी को? उनका कहना यह है कि जो रोहड़ी से लिफ्ट रवाना की जो मीरपुर माथलो तो एक स्टेशन है वहां पर पहुंच चुकी है, मगर उसको आगे जाने के थोड़ा रास्ता चाहिए जिसके बाद जो है वो कोई ऑपरेशन में हिस्सा ले सकेगी। मगर इस वक्त तक काजी अगन हमारे वहां पर मौजूद हैं चाहे हादसा पर, मगर अभी तक उन्होंने भी तस्दीक नहीं की कि कोई इनका रेलवे का रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई वहां पहुंचा हो हमला। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम पहले भी कह सकते हैं कि रेलवे के हकाम के पास जो है रेस्क्यू के लिए अपनी जो ट्रेन है उसको रेस्क्यू रिलीफ के लिए तो क्रेन मौजूद है, मगर उनके पास भी कोई ऐसा अमला मौजूद नहीं है कि वो ऐसे हाथों के तौर पर कोई रेस्क्यू कर सकें, फौरन किसी कीमती जानों को बचा सकें। एम्बुलेंसेस का जो है यहाँ पर काफी कमी नजर आ रही है। जो एसी एम्बुलेंसेस हैं वो पहुंची हैं, ये हमारे काजी अगर ने जैसे बताया 1122 की जो टीमें हैं एम्बुलेंसेस हैं वो पहुंची हैं, मगर जो इस वक्त जख्मी हैं और जो
जख्मी नहीं हुए हुए वो भी दोहरी परेशानी में मुब्तला यहाँ पर नजर आते हैं। यहाँ पर पानी पीने के लिए भी नहीं है, ज़िला इंतजामिया अभी तक पानी भी फराहम नहीं कर सकी है कि जो जख्मी है या जो जख्मी नहीं हो सके हैं इस हादसे में उनको कोई पानी ही फराहम कर दिया जाए ताकि वो तो उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो सके। मगर इस वक्त यहाँ पर एक अफरा तफरी का आलम नजर आ रहा है, कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही, ज़िला इंतजामिया हो या रेलवे हो, इस तरह से रशीद साथ ही रहेगा। काज़ीगंज से आप जाए वक़ूअ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा कि यहाँ पर रेलवे का या फिर पुलिस का आला तरीन ऑफिसर कौन मौजूद है? यहाँ पर किस रैंक का ऑफिसर है जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा है? पुलिस की बात की जाए तो एसएसपी घोटकी उमर तुफैल यहाँ पर मौजूद हैं और डीसी घोटकी ओस्मान अब्दुल्ला भी यहाँ पर मौजूद हैं, एससी डेर की रिजवान नजीर भी मौजूद हैं। मगर जो असल चीज है, जो जहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। रेलवे की जाने से गुज़िश्ता 3 घंटों से यही बताया जा रहा है कि सक्कर से इमदादी ट्रेन रवाना हो चुकी है, मगर सक्कर और इस जगह जो वक़्वा है उसमें 1 घंटे का मुफासला है। अगर वो 1 घंटे पहले निकलती तो अभी तक यहाँ पर उसको होना चाहिए था, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो किए गए दावे थे अभी तक वो हमें उनमें कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। अभी तक कोई इमदादी ट्रेन यहाँ पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो जख्मी हैं वो भी सख्त परेशान हैं। और अभी यहाँ पर मुझे सामने ये देख रहा है कि 1122 वाले जो हैं वो गैस कटर लेकर आए हैं, जिसके साथ अब बोगी को काटने की कोशिश करेंगे। मगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की यहाँ पर बिल्कुल नाअहली नजर आ रही है, यहाँ पर कोई इमदादी ट्रेन नहीं पहुंची। यहाँ पर जो ट्रेनों के अमला है उसके अलावा कोई आला अमलदार अभी तक यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा जो आगाही दे सके, जो अमवात है उनकी तस्दीक कर सके और कितने मुसाफिर इस ट्रेन में सवार। ठीक है, तो इतने बड़े रेलवे हादसे के बाद भी रेलवे हुकाम ही मंजर से गायब है। काजी, इस पूरे मामले को अगर देखें सुबह से अब तक जो हुआ है, ये हादसा पेश कैसे आया? बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि एक ट्रेन जो है वो कमजोर पटड़ी की वजह से ट्रैक से उतर गई, फिर दूसरी ट्रेन आकर उसी से टकरा गई। इसका जरा खुलासा बताइएगा, हुआ कैसे ही सर? पहले भी हम अपने जीएनएन के जरिए आगाह कर चुके हैं कि जो घोटकी का रेलवे ट्रैक है वो खस्ता हाली का शिकार है। लकड़ियों के सहारे पर उसको छोड़ा गया था, जिसके बाद जो मिल्लत एक्सप्रेस थी, जो उसकी 4 बोगियां पटड़ी से उतरी थी, उसके बाद जो है सर सैयद एक्सप्रेस से टकराई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। और इस हादसे में अभी तक 30 से जायद जो मुसाफिर हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और जो है दर्जनों यहाँ पर जख्मी हुए हैं। रेलवे इंतजामिया की नाअहली के बायस इस तमाम तर हादसा पेश आया है और अभी तक रेलवे इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता तकरीबन 4 बजे, ये सुबह 4 बजे हादसा पेश, 4.5 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक इमदादी ट्रेन ना पहुंचना ये रेलवे इंतजामिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये जहां पर हादसा पेश है वो सक्कर से जो है 1 घंटे की मुसाफत पर है। अगर 1 घंटा पहले भी ट्रेन निकलती तो यहाँ पर पहुंचना चाहिए था उसको, मगर अभी तक कोई भी इमदादी ट्रेन हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। रेलवे की जानिब से कोई इमदादी कार्रवाई यहाँ पर नजर नहीं आ रही। मकामी पुलिस के जो एसएसपी घोटकी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मगर वो यहाँ पर सिर्फ हाथ बांध कर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, मगर उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मकामी अफराद, पाक फौज के जवान और पाक रेंजर के जवान और रेस्क्यू 112 के जो जवान हैं उनकी जानिब से रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया है। कुछ देर पहले जब डीसी घोटकी उस्मान अब्दुल्ला से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फौरी तौर पे इकदाम किए जा रहे हैं, यहाँ पे जो तिब्बी इमदाद के लिए कैंप बनाया जा रहा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो जमा की जा रही है मुसाफिरों की, तो कोई इकदाम उनकी तरफ से भी देखने में आया? जी बिल्कुल, उसको जीएनएन से बात किए हुए डीसी घोटकी को भी तकरीबन 1.5 घंटा होने को है, मगर अभी तक कोई ऐसा इंतजाम हमें नजर नहीं आ रहा। मगर मकामी अफराद की जानिब से एक टेंट लगाया गया है जिस तरह से उसमें मुसाफिर उसकी छांव में बैठ सकें, और मकामी अफराद की जानिब से जो है कूलर पानी के जो है वो मुसाफिरों के लिए यहाँ पर लाए जा रहे हैं। मगर जिलाई इंतजामिया की बात की जाए या रेलवे इंतजामिया की बात की जाए तो उनकी जानिब से जो है जहाँ पे जो मौजूद मुसाफिर हैं उनके लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। ईदी और मुख्तलिफ जो यहाँ पर फलाही इदारे हैं उनकी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 की यहाँ पर एम्बुलेंसें मौजूद हैं, मगर इससे पहले जो मकामी अफराद थे उन्होंने कई जख्मियों को अपनी मोटरसाइकिल के जरिए, ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए और जो डॉक्टर हैं उनके जरिए रेती की अस्पताल, डहर की जो है उसकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मगर जो है यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी है वहाँ पर जो सेहत का इंतजाम है वो भी बिल्कुल जिस तरह से ये रेलवे का इंतजाम है खस्ता हाली का शिकार कहें यहाँ जहाँ पर अंधेर नगरी नजर आती है हर तरफ। काजी और रशीद रजा साथ ही रहिएगा। इस हादसे के बारे में एक ऐनी शाहिद का बयान भी जीएनएन ने हासिल कर लिया है, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। 2:30 बजे का टाइम था, गाड़ी तकरीबन 100 की स्पीड पे आ रही थी।
तो उस ट्रैक पे मिल्लत एक्सप्रेस थी, वो पटरी से उतरी हुई थी, उसकी बोगी ना एक हमारे ट्रैक पे भी आ गई थी, तो हमारी ट्रेन सीधा जाके उसको हिट हुई है, तो उसकी भी कुछ बोगियां तबाह हुई हैं और हमारा इंजन इस साइड पे। कितने लोग यहाँ इसमें जाम भाग होंगे, कोई पता है? कोई आइडिया नहीं है, बाकी सारे इंजन के नीचे आए हुए हैं और कुछ बोगियों के अंदर हैं और बोगियां ऐसे टूटी हुई हैं। वहाँ से ट्रेन आ रही थी, वो बस हम तो 8 नंबर डब्बे में थे, बस बंदे निकाल रहे थे, इतना वो लगा नहीं है, बस ये हाथ पे थोड़ा हाथ काम नहीं कर रहा है, यूं ऊपर नहीं हो रहा। दो ऐनी शाहिदीन के बयान आपने सुने हैं इस वाक़े से मुताल्लिक, जो कि मुसाफिर भी मालूम होते हैं। उनका बताना है कि रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद का वक्त था। बताया गया है कि यह हादसा 3:45 पर पेश आया। उस मौके पर जब मिल्लत एक्सप्रेस जो कि इस ट्रैक पर आ रही थी, ट्रैक खस्ता हाल होने के बायस यहाँ पर आमतौर पर कहा जाता है कि ड्राइवर अपनी रफ्तार को आहिस्ता रखें और अपनी रफ्तार के ज़रिए ही इस ट्रैक की जो खामियां हैं उनसे बचा जा सकता है। रफ्तार कम करने के बजाय इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ड्राइवर अपनी रफ्तार उतनी कम नहीं कर सका। यही वजह थी कि मिल्लत एक्सप्रेस जो थी उसकी कुछ बोगियां इस ट्रैक से उतर गईं और साथ वाले ट्रैक पर जा गिरीं। दूसरी जानिब उसी ट्रैक के ऊपर कराची से रवाना होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी, जो कि ट्रैक पर पड़ी उस बोगी के साथ अचानक से टकरा गई। यहाँ पर दो अहम गलतियों और सवाल मुजरिमाना गफलत की सूरत में सामने आ जाते हैं। पहला ये कि ट्रैक ख़राब है, उसको रिपेयर नहीं किया गया, और ये रिपोर्ट किए हुए कि ट्रैक ख़राब है। सरकारी सतह पर रेलवे हुकाम को 4 साल बीत चुके हैं, मगर 4 साल में एक ट्रैक की मुरम्मत ना की गई, जिसके बायस मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियाँ उस ट्रैक से उतरकर साथ वाले ट्रैक पर जा गिरी। जब बोगियां दूसरे ट्रैक पर जा गिरी हैं, ऐसे में फौरी सिग्नल कम्युनिकेशन के जरिए ये ज़रूरी था कि आने वाली ट्रेन को रोका जाता कि उस ट्रैक को बंद कर दिया जाए और वहाँ से कोई ट्रेन ना गुजरे। मगर नाकामी का और सुस्त रवि का या फिर नाअहली का रेलवे हुकाम की ये आलम है कि एक ट्रैक मुतासिर हो चुका है, ये बताने में कि ट्रैक मुतासिर है वहाँ से ना गुजरा जाए, इसमें भी कोई कामयाबी नज़र नहीं आई और ना बताया गया। इसी मुजरिमाना गफलत की वजह से ट्रैक पर पड़ी उस बोगी के साथ आकर सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन टकराया और उसके बाद मज़ीद 7 से 8 बोगियाँ बताया जा रहा है जो कि सर सैयद एक्सप्रेस की थीं, वो उलट गईं। अब तक इस हादसे में लगभग 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, दर्जनों ज़ख्मी भी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। मालूम ये भी हो रहा है कि जाए वक़ुआ पर इस वक्त जो कुछ बोगियाँ उल्टी हुई हैं उनके अंदर कुछ ऐसे ज़ख्मी भी मौजूद हैं जो कि मदद के लिए पुकार रहे हैं, मगर बड़े कटर और मशीनरी ना होने के बायस उन्हें वहाँ से निकालना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत छोटे कटर लेकर आए हैं जो कि आमतौर पर किसी औजार को तेज़ करने या छोटी मोटी चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके ज़रिए अब ये बोगियाँ काटी जा रही हैं और यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। जब से यहाँ पर कुछ कटर पहुँचे हैं और एक ट्रैक्टर की मदद से इंजन को हटाया गया है, इत्तलात ये भी हैं कि इस दौरान 5 मज़ीद लाशें भी निकाली गई हैं। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि कराची कैंट स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी मामूल के मुताबिक जारी है। अवामी एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस कैंट स्टेशन से रवाना हो गई हैं। तीनों ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त पर ही रवाना हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही ट्रैक है जहाँ से इन ट्रेनों ने गुजरना है तो वो अपने वक्त पर रवाना होने के बाद यहाँ पर आके यकीनन रुक जाएंगी। साकिब वाला ने जाएंगे। साकिब, इन ट्रेनों ने जो 3 रवाना हुई कराची स्टेशन से, इन्होंने इसी ट्रैक से गुजरना है? साकिब, आप सुन पा रहे हैं? साकिब आलम से भी जानेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची कैंट स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी मामूल के मुताबिक जारी है। अवामी एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस कैंट स्टेशन से रवाना हो गई हैं। ये तीनों ट्रेनें कराची से तो रवाना हो चुकी हैं, मगर चूँकि डहरकी के मकाम पर हादसा पेश आया है, जानना यह है कि वो ट्रैक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। साकिब बताइएगा कि इन तीनों ट्रेनों ने उसी ट्रैक से गुजरना है जहाँ पर हादसा पेश आया, वो ट्रैक तो क्लियर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। कराची कैंट स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी जो है वो मामूल के मुताबिक जारी है। अवामी एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस जो है वो कैंट स्टेशन से अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई है। ये तीनों ट्रेनें वही ट्रेनें हैं जो कि इसी ट्रैक से सखर से होती हुई पंजाब के अंदर दाखिल होंगी। तहम जो रेलवे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अगर जब तक अगले 8 घंटे में जो है ये ट्रेनें सखर के मुकाम पे पहुंचेंगी और अगर 8 घंटों के अंदर ये ट्रैक जो है वो क्लियर नहीं होता है तो इन तमाम ट्रेनों को रोडी जंक्शन के ऊपर जो है वो रोक दिया जाएगा। जबकि जो अंदरूनी पंजाब से आने वाली ट्रेनें हैं उनमें मुताबिक ट्रेनें ऐसी हैं जो कि इस वक्त कराची उनकी आमद का सिलसिला जो है
वो जारी है। सक्खर एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस जो है वो कराची पहुंच चुकी है। जिन्ना एक्सप्रेस भी जो है अब से चंद लम्हा कबल ही कराची कैंट स्टेशन पहुंची है। रेलवे हुकाम का कहना है कि जो ग्रीन लाइन ट्रेन है जिसको कि लाहौर से कराची पहुंचना था, मुमकिन तौर पे वो जो है इस वक्त सक्खर से पीछे की जानिब है, तो वो लाजमी तौर पे डिले हो सकती है हादसे के सबब। जबकि दीगर ट्रेनें जो रोडी जंक्शन क्रॉस कर चुकी है वो तमाम तर ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त पर कराची कैंट स्टेशन पहुंचेंगी। जी ठीक है, साकिब आलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डहरकी से मुतालिक जो हादसा हुआ है, डहरकी के मुकाम पर मिलत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में, उससे मुतालिक आपको एक बार फिर अपडेट करें और आपको बताएं कि इस खौफनाक हादसे में अब तक 30 अफराद के जाम बहक होने की इतलात हैं और दर्जनों अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। नुमाइंदा जीएन काजी अगनशर इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात लेंगे। काजी अगनशर, बताइएगा कि इस वक्त बोगियों में मज़ीद कितने अफराद के मौजूद होने की इतलात हैं? जी, अभी तक जो अंदर बताया जा रहा है कि जख्मी कोई भी नजर नहीं आ रहा। लाशें हैं जो 10 से 15 बताई जा रही हैं जो बोगियों में मौजूद हैं, जिनको काटने की कोशिश की जा रही है। उसमें से 5 से ज्यादा लाशें निकाली भी गई हैं, मगर दीगर जो लाशें बोगियों में फंसी हैं उनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। अभी तक असल में मामला ये है कि कोई बड़ी हेवी मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बोगियों को काटने में दुश्वारी पेश आ रही है। और छोटे छोटे जनरेटर मकामी अफराद लेकर आए हैं, जिनके जरिए वो छोटे कटर चलाकर इन बोगियों को काटा जा रहा है और उनमें जो फंसी हुई लाशें हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक जो काफी जो लाशें हैं अभी भी इन बोगियों में अंदर पड़ी हैं, जिनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त यहाँ के जो मनाजिर हैं इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। यहाँ पर जो कई मुसाफिर हैं अपने प्यारों के बिछड़ जाने पर हमसे निहाल हैं और वो भी मदद के मुंतजिर हैं। तो उनकी जो मदद के लिए अभी यहाँ पर पाक फौज और पाक रेंजर और रेस्क्यू 112 और के एहलकार जो हैं वो भी पहुंचे हैं और जो लाशें हैं उनको डहरकी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और अभी तक जो तादाद है लाशों की 30 से ज़ायद बताई गई है, जिनको जो है यहाँ से मुंतकिल किया गया है। तो यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं वो अभी भी रेस्क्यू के अमल को जारी रखे हुए हैं। और जो रेलवे इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था कि रिलीफ ट्रेन को सक्खर से रवाना किया गया है, मगर अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंची, जिसके बायस जो रेस्क्यू का अमल है उसमें सख्त जो है यहाँ के परेशानी हो रही है। जो रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे हैं पाक फौज के जवान हो या पाक रेंजर के 1122 के, और यहाँ पर मोटरवे पुलिस भी हमें नजर आ रही है। तो ये तमाम तर जो हमारे इदारे हैं यहाँ पर रेस्क्यू का अच्छा, काजी ये बताइएगा कि जिन अस्पतालों में जख्मियों को मुंतकिल किया गया है उनके नाम बता सकते हैं, ताकि जो लोग इस वक्त टेलीविजन के जरिए मालूमात हासिल करने अपने प्यारों से मुतालिक वो वहाँ पहुँच सकें? ये घोटकी की तहसील डहरकी है, जहाँ पर तमाम तर जख्मियों और जो जहाँ बाप होने वाले अफराद हैं उनकी लाशें मुंतकिल की गई हैं। डहरकी अस्पताल है और उसके अलावा मीरपुर माथिल और DHQ हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वहाँ पर भी इनको मुंतकिल किया जा रहा है। जो शदीद जख्मी हैं उनको रहीम यार खान और सक्खर के अस्पतालों की तरफ मुंतकिल किया गया है। अभी भी जो जख्मी हैं या जो लाशें हैं उनकी मुंतकिली का जो अमल है वो जारी है। एम्बुलेंसों में उनको डहरकी और मीरपुर माथिल की अस्पतालें जो है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। मगर जो ये काजी, आप ये बता सकते हैं कि जाम बहक होने वाले अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग और नौजवान शामिल हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 ऐसी लाशें थी जो खवातीन की थी, 3 से 4 लाशें ऐसी है जो हमने देखी हैं वो बच्चों की है। बाकी जो मुसाफिर हैं वो मुख्तलिफ जिनकी उम्रें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बच्चे और खवातीन ज्यादा तादाद में उनकी लाशें यहाँ पर देखी गई हैं। अच्छा काजी, अब तक ये बताइएगा कि जो ट्रेन के जो इंजन ड्राइवर हैं उनके हवाले से क्या इतलात है? उनका कोई बयान सामने आया है? उनकी हालत कैसी है? उनसे बात करने की हमने कोशिश की मगर उन्होंने बात करने से इनकार किया और वो उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। हमने उनसे इस हादसे के बारे में मालूमात लेने की कोशिश की मगर वो कैमरा के सामने आकर बात करने से उन्होंने इनकार किया। मगर वो यहाँ पर DC से बात करते हुए उसने बताया कि ये जो है डी रेल होने की वजह से जो 4 बोगियां थी वो डी रेल हुई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। वो यहाँ पर जो DC घोटकी है उसको ये आगाही दे रहे थे मगर उन्होंने कैमरा के सामने आकर बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा काजी, ये वाकया कुछ यूँ है कि पहले मिलत एक्सप्रेस की कुछ बोगियां अपनी पटरी से उतरकर साथ वाले ट्रैक पर गिर गईं और फिर उस ट्रैक पर आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस उनसे टकरा गई। कितना वक्त था इस बीच में बोगियां पटरी से उतरने में और सर सैयद एक्सप्रेस के वहां पर आने में, जिस बीच बताया जा सकता था कि ट्रैक क्लियर नहीं है और वहां पर ट्रेनों को रोक लिया जाए?
बिल्कुल एक एनी शाहिद से हमने बात की थी, उसका ये कहना था कि मिल्लत एक्सप्रेस की जैसे बोगियां उतरी तो हम ट्रेन से उतरे तो थोड़ा ही टाइम 2 या 4 मिनट के अंदर अंदर जो है उसके बाद ये एक्सप्रेस आई जिसने आकर इससे टकराया, जिसके नतीजे में उसकी एक बेटी और उसकी बीवी एक दोस्त जहाँ भाग हो गया था, जिसकी बातचीत जो है GNN पे चला भी चुके हैं और भेज भी चुके हैं। तो उस जो एनी शाहिद का ये कहना था कि ट्रेन की पटरियां उतरने के बाद 5 से 4 मिनट में जो ट्रेन है उसने आकर बोगियों से टकराया, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया है, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं, जिनको डहर की और मीरपुर माथेलो की अस्पतालों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है काजी, आप अपने इल्म की रोशनी में बता सकते हैं, अगर रेलवे के इंतजाम को देखा जाए तो इन 5 मिनट में कम्युनिकेट करना मुमकिन होता है कि ट्रैक क्लियर नहीं है, दीगर ट्रेनों को रोक लिया जाए, या फिर ऐसा मुमकिन नहीं है? मुमकिन, जो मौजूद मुल्क है वहाँ पर तो मुमकिन है, मगर हमारी सिंध के अंदर घोटी के अंदर हमें कहीं पर सिग्नल नजर नहीं आता। यहाँ पर जो फाटकें कायम की गई हैं वहाँ पर कोई हमें इंतजाम नजर नहीं आते। यहाँ पर जो रेलवे का इंतजाम है वो बस अल्लाह के हवाले से चल रहा है, मगर जो रेलवे इंतजामिया है उसकी यहाँ पर वाज़ेह नाअहली नजर आ रही है, क्योंकि अगर रेलवे इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जाते, सिग्नल का सिस्टम होता, इनका कोई राब्ते का निज़ाम होता तो ये हादसा पेश नहीं आता, मगर इनकी रेलवे की यहाँ पर कोई भी ऐसे इक़दाम हमें नजर नहीं आते। रेलवे की जानिब से जो नंबर दिए जाते हैं स्टेशनों के वहाँ वो अक्सर बंद मिलते हैं, तो जो मुसाफिर होते हैं वो सख्त रेलवे की वजह से पहले ही परेशान होते थे। आज रेलवे की नाअहली के बायस इतना बड़ा हादसा भी पेश आ चुका है। ठीक है काजी, इस ट्रैक से मुतालिक भी बताइए, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि ये ट्रैक जो है यहाँ से ख़राब है, कितना अरसा हो चुका है इस मामले पर सरकारी सतह पर रेलवे हुकाम को अब तक कितनी बार आगाह किया गया, उन्होंने क्या काम किया इसके लिए? रेलवे को तो कई बार जो है आगाह किया गया, मगर रेलवे की जानिब से इस ट्रैक को मरम्मत के हवाले से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। रेलवे यहाँ पे जो घोटकी का ट्रैक है वो कहीं पर लकड़ियों के सहारे छोड़ा गया है, तो कहीं पर जो है टूट फूट का शिकार है, मगर रेलवे की इंतजामिया की जानिब से इनकी मरम्मत के लिए कोई काम नहीं किया जाता। ये कई साल से ऐसी दरखास्तें यहाँ के मकामी अफराद भी अरसाल कर चुके हैं, मगर रेलवे की जानिब से उन पर कोई काम नहीं धरा जा रहा, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा पेश आया है और 30 से ज्यादा मुसाफिर। होता क्या है इन दरखास्तों पर रद्द-ए-अमल कैसा आता है? कोई जवाब ही नहीं आता, या फिर फंड्स जारी होते हैं मगर वो सही जगह पर लगते नहीं है, कहीं और खा लिए जाते हैं, होता क्या है आखिर? उन दरखास्तों पर जो कागजों में तो काम दिखाया जाता है, फंड भी उसके नाम पर हड़प किया जाता है, मगर जो रेलवे इंतजामिया की जानिब से इस ट्रैक का मरम्मत नहीं की जाती, उन दरखास्तों का उन शहरियों को कोई जवाब नहीं आता, मगर जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें ट्रैक की मरम्मत समेत तमाम तर जो पैसे हैं वो हड़प किए जाते हैं। इसमें रेलवे इंतजामिया की एक तो नाअहली, दूसरी करप्शन शामिल है, जिसके बायस ये घोटी का आज दूसरा बड़ा जो ट्रेन हादसा हुआ है। इससे पहले सरहद में हादसा हुआ था जहाँ जिसमें 70 से ज्यादा अफराद जो है जाँ बहक हुए थे। आज जो है इस वक्त तक जो मालूमात मौसूल है उसमें 30 से ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं और कई मुसाफिर यहाँ पर बेयारो मददगार परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। वो अपने जो उनके यहाँ पर एक तो मोबाइल काम नहीं कर रहा कि वो अपने वर्षा को इतला दे सकें, उनसे रब्ता कर सकें। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से भी ऐसी कोई डेस्क कायम नहीं की गई जिसके जरिए जो मुसाफिर हैं उनके अपने प्यारों तक उनकी जो इतला दी जाए, जो जाँ बहक हुए हैं उनकी इतला दी जाए, जिस तरह से वो अपने प्यारों की लाशें वसूल करें और अपनी लाशें वसूल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आए, क्योंकि इस ट्रेन में जो मुसाफिर हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से और सिंध के भी मुख्तलिफ शहरों से सवार हैं और बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों से इस ट्रेन में मुसाफिर सवार थे। तो उनको इतला देने में भी सख्त परेशानी है और मुसाफिर दूर दराज का इलाका होने के बायस कहीं जा भी नहीं सकते और बेयारो मददगार इसी ट्रेन की पटरी पर इस वक्त भी मौजूद हैं और मदद के मुंतज़िर हैं। जी अच्छा काजी, जाए वक़ुओं पर से तमाम लाशें यहाँ से हटा ली गई हैं, जितनी भी लाशें निकली अब तक? अगर लाशों की बात की जाए तो 20 से जायद लाशें जो हैं वो मुंतकिल की गई हैं। अभी भी 10 से 12 लाशें यहाँ पर जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और जो है उनको एक सड़क पर रखा गया है और अभी उनको मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और एम्बुलेंसें यहाँ पर तकरीबन दर्जन एम्बुलेंसें हैं, मुख्तलिफ जो फलाई इदारे हैं और जो जिलाई इंतजामिया है उनकी अभी एम्बुलेंसें यहाँ पर पहुँची हैं, तो उनमें उनको अभी डहर की मीरपुर माथेलो की अस्पताल जो है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा, मगर 20 से जायद बताया जा रहा है जो है उन लाशों को यहाँ से मुंतकिल किया गया है और मेरे सामने अभी भी 10 से 12 लाशें जो है एक सड़क पर, कच्ची सड़क है उस पर रखी गई हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। जी अच्छा काजी, ये बताएगा कि दिलखराश वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर भी हैं, क्या जाँ बहक होने वाले अफराद की जो लाशें यहाँ पर मिली हैं उनकी शनाख्त मुमकिन है और कोई रेलवे का हुकाम, कोई शख्स मौजूद हो जो कम से कम शनाख्त हासिल करके कोई फहरिस्त तैयार कर रहा हो? ऐसा भी नहीं हो रहा कुछ?
अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे हुकाम हमें यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहे जो हमें आकर आगाही दें, मगर ये है कि उनकी शनाख्त मुमकिन है क्योंकि उनके चेहरे इतने बिगड़े नहीं है, मगर जो नीचे आए हुए हैं उनकी जब लाशें निकलेंगी तो पता चलेगा कि उनकी हालत किस तरह से, उनको अभी निकालने की कोशिश की जा रही है कि उनकी शनाख्त मुमकिन है कि नहीं है, मगर जो रेलवे इंतजामिया है वो तमाम तर वो काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए था, जो मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए, जो यहाँ पर परेशान है, जो लाशें हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पर मकामी अफराद हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं इन लाशों को निकालने के लिए। छोटे छोटे कटर लेकर इन बोगियों को काटा जा रहा है, उनसे लाशें निकाली जा रही हैं। तो यहाँ पर जो अहले इलाका है, जो इन्हीं शाहिदीन है, उनके मुताबिक 20 से लाशें जायद जो हैं वो डेहरकी अस्पताल की तरफ मुंतकिल की गई हैं और इस वक्त भी 10 से 12 लाशें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा काजी, ये बताइएगा कि जो कटर एक रवाना हुआ है मीरपुर माथेलो, इतलात हैं कि वहाँ तक पहुँच चुका है, वहाँ से यहाँ आने में कितना वक्त लग जाएगा उसको, और रास्ता कैसा है वहाँ से यहाँ तक का? मीरपुर माथेलो और इसमें अगर जो आने की रास्ता मुनासिब है, ठीक है, मगर 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, इससे जायद वक्त यहाँ आने तक ना लगे तो बाकी ये है कि 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। जो जाए वकूओं पर रेस्क्यू हुकाम है उनका क्या बताना है कि इस वक्त इन ट्रेनों के मलबे तले कोई जख्मी शख्स मौजूद नहीं है, तमाम जख्मियों को यहाँ से निकाल लिया गया है? काजी आप सुन पा रहे हैं? काजी अगन शर से भी जानेंगे जो कि जाए वकूआ पर मौजूद हैं। इंतहाई दिलखराश मनाजिर वो खुद भी वहाँ पर देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर किए जा रहे हैं। अब तक बताया गया है कि यहाँ से 30 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनकी लाशें जाए वकूआ से मुख्तलिफ अस्पतालों में रवाना की गई हैं, जिनमें से 20 के हवाले से बताया गया है कि वो डहर के अस्पताल में हैं और इस हादसे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी सामने आती जा रही हैं।